Hello students, this is Ranjan welcomes you on our online channel Science Study Center and Young Minds Academy. Students, today we have to start chemistry for class 10th exclusive ICSE board. Okay, so the first chapter as you know is periodic table. Okay, students, you are familiar with this chapter as you had studied this one in class 9th. Okay, so class 9 periodic table generally क्या है? It is the systematic study of elements in the form of a chart. जैसे जैसे एलिमेंट्स इन्वेंट करते गए, जो केमिस्ट थे, एल्केमिस्ट थे, दे थॉट व्हाई शुड नॉट एलिमेंट्स मस्ट बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक वे. बस उसी से आइडिया जनरेट हुआ, धीरे धीरे वर्क हुए. पहले डॉबरेनियस ट्रायड आया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, देन फाइनली द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेबल which we studies is called the modern periodic table and the long form periodic table. यहाँ से क्लास 10th स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से. बट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं. डॉबरेनियस ट्रायड आप लोगों ने देखा होगा. डॉबरेनियस ट्रायड, इनका क्या कहना था? when a group of certain three elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then atomic mass of middle element be average of first and last. ना सपोज उन्होंने एक ट्रायड एल्कली मेटल का बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसका जो एटॉमिक मास होता है लिथियम का दैट इज 7 और पोटेशियम का 39. अब ये सोडियम का क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. And you know well how average is calculated. So this is 23. Okay. So उन्होंने कहा जो when a group of certain three elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then the atomic mass of middle element will be average of first and last. Okay. Students, this rule was discarded because he was unable to form the triads of all the known elements. The triads of all the known elements. Okay, काफी कम एलिमेंट्स इनके टाइम में इन्वेंट थे, बट ही वॉज फेल टू फॉर्म द ट्रायड ऑफ ऑल एलिमेंट्स. कोई रूल है, कोई पैटर्न है तो सभी के लिए फॉलो करना चाहिए. बट डॉबरेनियर was able to form only 3 triads: alkali metals, alkaline earth metals and halogens. Alkali metals, alkaline earth metals and halogens. Okay, now students, इनका रूल डिस्कार्ड हुआ. फिर न्यूलैंड साहब भी कोशिश कर रहे थे. then he had given Newland's law of octaves. Newland's law of octaves. Okay, तो ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है. इनका कहना था when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then the atomic mass of every 8th element resembles properties with first one. Okay, like the music notes सा रे गा मा पा, हर 8वां सा होगा. सिमिलरली अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले से प्रॉपर्टी रिसेंबल्स करेगा. ओके, रूल वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज वैलिड अप टू लाइटर एलिमेंट्स. That is up to calcium. But his classification was more efficient than Dobrenier. That's why students, he got Davy medal for his classification. Always remember, Newland got Davy medal for his classification. Okay, then students, Mendeleev बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया. इनके टाइम तक 54 एलिमेंट्स इन्वेंट हो गए थे स्टूडेंट्स. मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया. यू नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टीज
properties of elements are periodic functions of their atomic masses. Okay students, he told that the properties, अगर आप जानते हो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज टू टाइप्स के होंगे, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, all this we discuss in physical properties. And all chemical reactions like combustion, decomposition, displacement, double displacement, oxidation, reduction, all these phenomena are discussed in chemical properties. So Mendeleev told that the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आएगा. उन्होंने अच्छे से क्लासिफिकेशन किया, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप बोला था, हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स बोला था, ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था. ये सारी बातें आप लोगों ने 9th में पढ़ा है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न periodic law. So students, this law was given by Henry Moseley. Remember that he was the first chemist who think beyond the tradition. Every chemist was saying that the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses, but this was totally wrong. Moseley told that the physical and chemical properties are periodic functions of their atomic numbers. Atomic number is more fundamental property to decides the properties of elements compared to atomic masses. So a drastic change came in the life of chemistry, in the study of chemistry, and till today we study about elements, we follow Henry Moseley. Okay, so his periodic law was that properties, or we can say that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Okay, if we want to classify the elements, then atomic number is more fundamental idea compared to atomic mass. अब एटॉमिक नंबर जिसको नहीं पता होगा स्टूडेंट्स याद रखना चाहिए, क्लास 6-7 से आप लोग पढ़ते हो. एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, डिनोटेड बाय जनरली Z. इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. You know that protons are present in the nucleus. So students, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे that will be atomic number of that elements. Okay, if there are 11 protons in the nucleus of sodium, it means that atomic number of sodium is 11. If there are 20 protons in the nucleus of calcium, it means that atomic number of calcium is 20. Okay, so protons atomic number clear है. स्टूडेंट्स याद रखना, इन एन एलिमेंट, ओके, कोई भी एलिमेंट होगा, आयंस की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and number of electrons, these all are equal. Okay, but in the case of ions,
You know that ions are formed by either gain or loss of electrons. That's why we don't include the number of electrons in the definition of atomic number, because electrons vary होंगे. Protons students कभी भी change नहीं होगा. न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात बाद में देखेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की बात, ठीक है. तो इन जनरल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. ओके, अब इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया. नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ही फॉर्म मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न और long form periodic table. Okay, so what is long form periodic table? So we can say it is the systematic study, it is the systematic study of elements in the form of horizontal lines, which is called periods, and vertical lines, which is called groups. Okay students, so what is modern periodic table? This is the systematic study of elements in the form of groups and periods. Okay students, exam point of view से you will get 6 to 8 marks from these chapters. Okay, but every class is very important. Okay, यहाँ पे आपको definitions नहीं आएंगे, variations आएंगे. पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक साइज क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशंस होंगे. यू आर एबल टू आंसर टिल you memorize every concept, your every concept is crystally clear, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे. so every class is very important and this chapter is very important. सारे केमिस्ट्री के चैप्टर में बच्चों एलिमेंट्स मिलेंगे तो पीरियोडिक टेबल का यूज होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन हिज पीरियोडिक टेबल मोज़ले टोल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्या बोला उन्होंने, पीरियड्स. ओके, हॉरिजॉन्टल मींस लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. ओके, ही टोल्ड दैट पीरियड्स एंड इन हिज पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स वर 7. ओके, क्या थे नाम उनके, पीरियड, नेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो ध्यान से समझना है. फर्स्ट पीरियड को ही टोल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड. ओके, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स. सेकेंड एंड थर्ड he told them short period. How many elements are there in second and third? 8 elements. Okay, fourth and fifth long period. How many elements are there? 18. Sixth one very long, or you can say also longest period. How many elements are here? 32. And the last one was incomplete. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों 9th में भी देखा था, तो आप 7th पीरियड देखोगे तो वो ब्लैंक है, मतलब अभी एलिमेंट्स उतने इन्वेंट नहीं हुए हैं. आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, हो सकता है आपका भी नाम आ जाए. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, सो लेट अस फोकस हियर. हॉरिजॉन्टल लाइंस वर कॉल्ड पीरियड्स. टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स वर 7. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. First one very short period, 2 elements. Second, third short period, 8 elements. Fourth, fifth long period, 18 elements. Sixth one very long, 32. And seventh one is incomplete. याद हो गया? Number of elements याद रखना है, 2, 8, 18, 32 incomplete. ठीक, तो 2 पहले में, next 2 में 8, फिर next 2 में 18, sixth में 32 और last में incomplete है. Okay, now
vertical lines are students generally up to down or down to up. Okay, he called these lines groups or columns. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स. अगर स्टूडेंट्स हम लोग ओल्ड नेमिंग की बात करेंगे, ओल्ड नेमिंग, सो देयर आर 16 ग्रुप्स और लाइंस वर्टिकल कितनी है 18. और अगर स्टूडेंट्स न्यू नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करें, देयर आर 18 ग्रुप्स और लाइंस कितनी है 18 लाइंस ही है. कहाँ प्रॉब्लम है अभी हम लोग देखते हैं. तो ये न्यू नेमिंग ओल्ड नेमिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? काफी टाइम तक हम लोग ओल्ड नेमिंग ही पढ़ते आए, बट इन 16 और 17 केमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस होते हैं दैट आर डन बाय IUPAC. यू नो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. चेंजेस आर मेड बाय IUPAC और IUPAC ने फिर ग्रुप के नए नेम दिए और टोटल 18 ग्रुप्स है. अब देखते हैं, याद हो गया, ये क्लियर हो गया. नाउ अब स्टूडेंट्स ग्रुप्स की बात करें, ओल्ड वर्सेस न्यू देखते हैं. ओल्ड वर्सेस न्यू. ओल्ड में स्टूडेंट्स फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ ग्रुप या एट्थ बी कह सकते हैं, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड एट्थ ए, या इसको हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं. ओके, न्यू नेमिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करें स्टूडेंट्स, नेमिंग करें, वेरी इजी. आप अल्फा 1 2 3 लिखते जाओ. 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Something is missing. 8th में 3 कॉलम्स है स्टूडेंट्स. 8th में इन्होंने 3 कॉलम दिया था, 8, 9, 10. ओके, क्लियर करते हैं अभी. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th. Now the क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, डाउट क्लियर. ओल्ड नेमिंग में स्टूडेंट्स 8th बी जो था, 8th ग्रुप था, उसमें इन्होंने 3 वर्टिकल लाइंस, ये 1 2 3, ये तीनों वर्टिकल लाइंस को इन्होंने 8th बी या 8th ग्रुप बोला. बट जब न्यू नेमिंग IUPAC ने लॉन्च दिया, ही टोल्ड दैट नो, सबके अलग अलग नाम होंगे, 8, 9, 10th. दैट्स वाई या दो इंक्लूड हो गए. ठीक, तो कॉलम तो ओल्ड में भी 18 ही थे, बट इन तीनों के नेम सेम थे, इसको सेपरेट कर दिया गया, दैट्स वाई न्यू नेमिंग से 18 हो गए. क्लियर है? नाउ अब इनके सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है. फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. व्हाट दे कॉल्ड? एल्कली मेटल्स. सेकेंड ए alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Okay. First B, currency metals. Currency metals. Fifth A students, nicosans. Sixth A, chalcosans. Seventh A, halogens. And the last one, noble, inert or rare gases. क्लियर है? ये स्पेशली ग्रुप के आपको नेम याद रखने हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ए एल्कली मेटल्स, इसमें स्टूडेंट्स यू विल गेट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, टोटल 7 एलिमेंट्स. Why they are called alkali metals? Because students 9th में पढ़ा होगा
जो मेटेलिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। और इन सब के हाइड्रोक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दैट्स वाई ग्रुप ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। क्लियर है? एल्कली का मतलब द हाइड्रोक्साइड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इट मीन्स इनके भी हाइड्रोक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते होंगे, दैट्स वाई एल्कलाइन। अर्थ, अर्थ का मतलब है स्टूडेंट स्वैल है, मिट्टी। These elements are present in soil also। आप लोगों ने गांव में या शहर में कहीं भी देखा होगा छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं। जनरली बच्चों में प्रॉब्लम होती है, उनको मिट्टी जब भी टेस्ट करते हैं अच्छा लगता है, they try to consume that। Why? Because that children has the deficiency of calcium। Whenever they take soil, deficiency of calcium होती है, उनको अच्छा लगता है, that's why they eat it। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं वो कैल्शियम की दवा दे देता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ओके, सो स्वैल इज, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन दिस स्वैल। बाकी सब भी बहुत ही स्मॉल ट्रेसेस में फाइंड होते हैं, दैट्स व्हाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट बी करेंसी मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। You know that in prehistoric times their coins are in general use। ओके, आज हम लोग जो एलॉय के क्वाइंस यूज करते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के होते थे, दैट्स व्हाई दे आर करेंसी मेटल्स। फिफ्थ है नाइकोजेंस। लिसन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइकस मींस पॉइजन, नाइकस मींस पॉइजन। ओके, सो दिस इज नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ओके, तो ये नाइकस, दे आर वेरी पॉइजनस। Their exclusives are formed TNT, trinitrotoluene, TNG, trinitroglycerol, gunpowder, all are their composition is the element of this group element. That's why they are called nicogens. Calcus, calcus means students ore forming, ore forming। आप लोग 10th में एक चैप्टर है मेटलर्जी पढ़ोगे स्टूडेंट्स। जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड है, आयरन है, गोल्ड तो चलो फ्री स्टेट में मिलता है, कहां से सब ऑब्टेन होते हैं? यू नो दैट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द क्रस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। गोल्ड माइन सुना होगा। तो सिमिलरली जो आयरन होता है ना, आयरन के रॉड भी होते हैं, डोर्स भी होते हैं, विंडोज भी होती है। तो एक्चुअली आयरन की बड़े इरेगुलर शेप्स में स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक, तो जिस स्टोन से the substance from which metals can be extracted, literally we can say the minerals from which metals can be extracted are called ore। ओके, अब स्टूडेंट्स जो ओर होते हैं जमीन में, अगर आयरन फ्री स्टेट में होता तो कोरोड हो जाता। यू नो दैट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्रस्ट में पानी भी होता है तो कोरोड हो जाता है, आयरन में रस्टिंग होता है। तो कंबाइंड स्टेट में मोस्ट ऑफ द ओर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, इन द फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। ओर्स का मतलब क्या? इनसे मेटल को हम ऑब्टेन करेंगे। अगर फ्री स्टेट में होगा तो वो कोरोड हो जाएगा। गोल्ड तो लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए गोल्ड तो फ्री स्टेट में भी मिल जाता है। ओके, तो ये आयरन भी फ्री स्टेट में होता होगा बट दे विल बी कोरोड। ओके, तो जो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में मैक्सिमम ओर होते हैं, और ये ऑक्सीजन सल्फर यही ऑक्सीजन फैमिली में है, 6th A में है, 16th ग्रुप में है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हैलस। हैलस मीन्स होता है स्टूडेंट्स सॉल्ट फॉर्मिंग। अब इसमें जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। आयोडीन जान रहे हो, सी शोर पे ही मिलता है, सॉल्ट फॉर्मिंग होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड। नाउ लास्ट वन पढ़ा है नोबल गैसेस। व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट? देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट, they do not form in chemical reactions, they do not form compounds। okay,
एंड व्हाई दे आर कॉल्ड रेयर गैसेस? अब इनके कंपाउंड्स है नहीं, तो ये एटमॉस्फेयर में या यूनिवर्स में ट्रेसेस में होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेयर गैसेस. ओके, सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स. याद रखना है, यहां से आपको 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में इसके आगे बढ़ेंगे. ओके, सो प्लीज सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट बातों को पेन डाउन करते जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों. थैंक यू.